Hello 7th class, this is your math subject. Children, today we are going to continue our chapter 10, exercise 10.b. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Exterior angles and interior angles. So, draw a triangle ABC and produced BC to D. Then triangle ACD thus formed is called exterior angles of triangle ABC at C. यहाँ पर आप देखेंगे triangle ABC है, इसके exterior हमने triangle C draw किया है. So exterior angle property of a triangle. If a side of a triangle is produced, हमने side को produced किया, then the exterior angle so performed is equal to the sum of two interior opposite angles. So इसका opposite angles हमारे ये होंगे. So यहाँ पर आप देखेंगे angle 1 plus angle 2 का जो हमारा इनका जो sum होगा बेटा वो angle 4 के equal होगा. Means यहाँ पर आप देख रहे हैं angle 1 plus angle 2 equal to angle 4. Okay. Now comes our exercise 10.b. A part, select the correct answer. First question, if the exterior angle of a triangle is 130 degree and its interior opposite angle are equal, then the measure of the each interior opposite angles. So आपको opposite angles का find करने हैं यहाँ पर. So यहाँ पर आप देखेंगे 130 डिग्री इक्वल टू 2x बिकॉज टू एंगल्स इक्वल है. सो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी आ गई 65 डिग्री. हाफ किया है इसका. So B option is correct. Now comes question number 2. In triangle PQR, if angle P equal to 60 and angle Q equal to 40 degree, then the exterior angle found by the produced QR is equal to. So आपको find करना है. So यहाँ पर आप देखेंगे exterior angle equal to 60 plus 40, इनका sum हमारा exterior angle आएगा. So 100 हमारा जो आंसर आ गया. C option is correct. Now comes question number 3. Exterior angle of a triangle and its adjacent interior angles are, so इनको हम क्या बोलेंगे, supplementary angles. Okay, so B option is correct. Now see B part, solve the following. First question, one of the exterior angle of a triangle is 125 degree and the interior opposite angles are in the ratio of 2:3. Find the angle of the triangle. So आपको ratio given है, आपको angles find करने हैं triangle के. So यहाँ पर आप देखेंगे, let the interior opposite angles of 2x and 3x. ओके, रेशियो के अकॉर्डिंग हमने इनको लेट किया है. सो 2x प्लस 3x इक्वल टू 125, जो इसका अपोजिट एंगल्स हैं, जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने फाइंड पुट की है यहाँ पर. सो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे. x इक्वल टू 25 डिग्री आ गया. सो 2x हमारा फर्स्ट एंगल है. 2x की वैल्यू पुट करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 50 डिग्री. नाउ 3x यहाँ पर है. 3 मल्टीप्लाई 25 करेंगे. सो 75 डिग्री. सो 1 is 50 and other is 75 degree is our answer. Now comes question number 2. In the adjoint figure, आपको figure given है. Find the value of x and also find the measures of angle A and angle B. So आपको angle A and angle B की वैल्यू भी फाइंड करनी है. ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों का सम हमारा 125 गिवन है. सो यहाँ पर x प्लस 15 डिग्री प्लस 2x प्लस 5 डिग्री इक्वल टू 125. सो यहाँ पर इनको कैलकुलेट करेंगे. x की वैल्यू हमारी आ गई 35 डिग्री. नाउ एंगल A इज आवर x प्लस 15 डिग्री. सो x की वैल्यू पुट करेंगे 35 प्लस 15. सो 50 डिग्री इज आवर आंसर. नाउ एंगल B की वैल्यू पुट करेंगे 2x प्लस 5 डिग्री. सो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 35 देन प्लस 5. सो 75 इज आवर आंसर. सो एंगल A इज आवर 50 degree and angle B is our 75 degree is our answer. Now comes question number 3. See in your book. If the side of a triangle are produced in the order, show that the sum of the exterior angle so formed is 360 degree. सो यहाँ पर आप देखेंगे हमने स्केच ड्रॉ किया है. हम ए बी सी हमारा ट्रायंगल है. ओके, सो इन दिस फिगर एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ए. सो ए बी बी ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी एंड एंगल सी बी एफ इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल ए. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने यूज किया यहाँ पर. देयरफॉर एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी बी एफ इक्वल टू हो गए हमारे एंगल बी प्लस एंगल ए. यहाँ पर हमने जो लेट किया था उनकी वैल्यू पुट कर दी. एंगल ए सी डी के प्लेस पर हमने एंगल बी प्लस ए पुट किया है. नाउ सिमिलरली हमने इनको पुट किया है. यहाँ पर हम इनको प्लस करेंगे. सो 2 हमारे कॉमन आ जाएगा. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी. नाउ दिस इज आवर 180 डिग्री होता है अकॉर्डिंग टू सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स. ओके,
सो यहाँ पर आप देखेंगे एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी ए ई प्लस बी सी बी एफ इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर हमारा प्रूव हो गया बिकॉज 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 360 डिग्री हमारा आएगा। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4। सी इन योर बुक, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। सो यहाँ पर आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 क्वेश्चंस गिवन है बेटा। ए पार्ट आप देखेंगे, यहाँ पर हमें फिगर दी गई है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पर ए सी बी हमारा ये है, वाई हमें है ये, ओके गिवन है। एंड ए सी डी इज 65 डिग्री, ए सी डी इज 65 डिग्री इज गिवन। सो इनका जो सम होगा वो 180 होगा बिकॉज ये हमारे लीनियर पेयर है। ओके, इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। सो यहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो y की वैल्यू हमारी आ गई 115 डिग्री, माइनस करके आ गया हमारा। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, सो यहाँ पर आप देखेंगे ए बी सी में हमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ये हमारा इक्वल टू होगा एंगल ए सी डी। ओके, इसके इक्वल होगा जो हमारे एंगल ए एंड एंगल बी है बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है हमारी ये। सो यहाँ पर ए इज गिवन 32 एंड एक्स बी हमने एक्स पुट किया है एंड दिस इज 65। सो यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 33 डिग्री इज आवर आंसर। ओके, नाउ सिमिलरली बी एंड सी पार्ट करेंगे बेटा आप। यहाँ पर बी पार्ट गिवन है and here is C part. So firstly you do it yourself and then check your answer with this answer key. Now comes question number 5. In the given figure find the value of P, Q, R and S. So आपको यहाँ पर P, Q, R, S की वैल्यू फाइंड करनी है। So यहाँ पर आप देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, सो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। सो एंगल ए एंड बी गिवन है, सो सी की वैल्यू हम यहाँ फाइंड करेंगे, एस की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ओके, सो ये हमारा 180 है। नाउ यहाँ पर एस की वैल्यू हमारी 65 डिग्री आ गई। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इन दोनों का सम हमारा एंगल जो पी है वो आ जाएगा बेटा। सो यहाँ पर हमारी पी की वैल्यू हो गई 115 डिग्री। ओके, नाउ यहाँ पर आप देखेंगे P प्लस 40 डिग्री इक्वल टू क्यू, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है हमारी ये भी। सो यहाँ पर हमारी क्यू की वैल्यू आ गई 155 डिग्री, क्यू की वैल्यू फाइंड की है हमने यहाँ पर। नाउ R प्लस P प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बिकॉज ये जो है ये हमारा स्मॉल ट्रायंगल बन रहा है। सो इनका सम भी हमारा 180 होना चाहिए। नाउ यहाँ पर हमने P की वैल्यू जो फाइंड की थी 115 वो पुट की है एंड 40 डिग्री। नाउ R की वैल्यू हमारी 25 आ गई। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे R इक्वल टू 25 डिग्री, S इक्वल टू 65 डिग्री, P इक्वल टू 115 डिग्री एंड Q हमारा आया था 155 डिग्री। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 6। See in your book in the given figure P are parallel to RT and एंगल P एंगल Q का रेशियो हमें गिवन है 3 का, एंगल P एंगल Q एंगल R का 3:2:1। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल TRS। सो आपको एंगल TRS फाइंड करना है, आपको फिगर गिवन है। सो यहाँ पर आप देखेंगे लेट द एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR बी 3x 2x एंड x। ओके, नाउ इनका प्लस करेंगे सो सम हमारा 180 आना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो यहाँ पर आप देखेंगे 6x हमारा आ गया। नाउ x की वैल्यू हमारी 30 आ गई कैलकुलेट करके इनको। नाउ एंगल P हमारा 3x, एंगल Q हमारा 2x एंड एंगल R हमारा x है। सो x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। सो एंगल P हमारा 90 आ गया, Q हमारा 60 आ गया एंड R हमारा 30 डिग्री आ गया। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं एंगल P प्लस एंगल Q जो है हमारा वो एंगल P आर एस के इक्वल है। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। सो 90 प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल टी आर एस। ओके, सो यहाँ पर एंगल टी आर एस की वैल्यू हमारी आ गई 60 डिग्री। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 7। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, सॉरी ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए बी एफ इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल बी एफ डी इक्वल टू 35 डिग्री। सो आपको कैलकुलेट करना है बेटा एंगल सी डी एफ। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे फिगर गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी एफ इज अ ट्रांसफरबल। सो यहाँ पर आप देखेंगे एंगल ए बी एफ इक्वल टू एंगल बी ई डी। सो ये हमारे अल्टीरियर इंटीरियर एंगल्स हैं
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। सो दिस इज 60 डिग्री, सो ये हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल BED के। नाउ इन ट्रायंगल EDF, सो यहाँ पर एंगल D प्लस एंगल F इक्वल टू हमारा हो जाएगा एंगल BED के। ओके, ये हमने 60 डिग्री फाइंड किया है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। सो एंगल D हमें फाइंड करना है, F इज गिवन 35 डिग्री। सो यहाँ पर एंगल D की वैल्यू आ गई 60 माइनस 35 करेंगे, सो D इक्वल टू 25 means angle CDF equal to 25 degrees our answer. Now children, your exercise is over. Your homework is that you have to write it in your notebook. Thank you students.